قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر قتل کرنے پیچھے۔ میرے دوستو اس ویڈیو میں بہت مزہ ہے، آگے سنیے۔ بڑا ایک اچھا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپاتے دیکھتے تھے، آج کل اچھا مولانا چرچیز اچھا آج میں نے دیکھا 3 سے 6 بجے فلم ہال کے فلم دیکھ رہا تھا، آپ نے دیکھا 10 بجے بیان کر دیا۔ اس زمانے میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہے، بالکل مفت میں ویڈیو ملے گا۔ ایسے ہی مولانا جرجیز اور چھوٹا مولوی شمس الدین صاحبی نے اس واقعہ کو تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ بڑا پیارا واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک عورت احمد ابن مہدی کے پاس آتی ہے جس سے زنا ہو چکا تھا، سنیے بڑا پیارا دلچسپ واقعہ، اس سے زنا ہو چکا تھا اور زنا سے وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ زنا کرنے والا زنا کر کے بھاگ گیا، یعنی رضامندی کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا تھا، دونوں راضی تھے، لیکن زنا کرنے والے کا پتہ نہیں، اس عورت کے حمل ٹھہر گیا۔ یہ عورت احمد ابن مہدی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امام محترم پورے علاقے میں آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے، آپ بہت بڑے باعزت انسان ہیں، میری عزت و آبرو کو بچا لو، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے احمد ابن مہدی نے بولا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی آپ سے جھوٹ کیا بولوں، میں سچ سچ بتا دیتی ہوں امام محترم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں زنا کی مرتکب ہو چکی ہوں اور زنا کی پیداوار میرے پیٹ میں پل رہی ہے، یعنی میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ امام صاحب میں غیر شادی شدہ ہوں لیکن زنا کی پیداوار میرے پیٹ میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ پیٹ جب بڑا ہونے لگے گا تو لوگوں کے درمیان چہمے گوئیاں شروع ہو جائیں گی اور مجھے طرح طرح کے تانے دیے جائیں گے۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد پھر لوگ مجھے بہت الٹا سیدھا بولیں گے اور یہ بچہ بھی بڑے ہو کر پھر پتہ نہیں کیا نام پائے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس وقت تک مجھے اپنی بیوی بنا لیں، اپنی بیوی مان لیں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں، اتنے دنوں کے لیے مجھے آپ اپنی بیوی مان لیں جب تک کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس بچے کو لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔ احمد ابن مہدی نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ اس عورت کے لیے الگ کر دیا، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ یہ عورت میری بیوی ہے۔ دیکھیے اس زناکار عورت کی زنا جیسی برائی کو بھی چھپانے کے لیے احمد ابن مہدی کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور انہوں نے اپنی اصلی بیوی کو بتا دیا میری بیوی، تو میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں اس کے روم میں بھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن ایک عورت کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، اس کے پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا مسئلہ ہے، یہ عورت ماری ماری پھرے کی غلطی اس سے ہو گئی ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کرے گڑگڑائے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن اس وقت مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ احمد ابن مہدی نے اس عورت کو اپنی بیوی مان لیا اور ایک کمرہ دے دیا۔ حسب دستور 9 مہینے کے بعد جب اس عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس عورت کے پاس گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو سارے کے سارے محلے کے لوگ احمد ابن مہدی کو مبارکباد دینے آئے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے، مبارکباد دینے آئے اور ان کو دعائیں دینے لگے۔ احمد ابن مہدی نے 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ بھی کیا، محلے والوں کو بلایا اور ان کو کھانا بھی کھلایا۔ اتفاق دیکھیے 1-2 مہینے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ عورت احمد ابن مہدی سے کہتی ہے آپ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ آپ نے مجھے بدنامی سے بچا لیا ہے، اب تو میرا بچہ بھی نہیں ہے جس کے فیوچر کے لیے میں ڈرتی تھی، یہ تو انتقال کر گیا ہے، اب مجھے آپ کے گھر میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، میں آپ کی بیوی بھی نہیں ہوں، میں
दूसरी औरत का घर क्यों बिगाड़ूं? मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आपने 9 महीने तक मुझे खिलाया है, मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद आपने उसका पीछा किया है, ये हिसाब किताब जोड़ा, इतना आपका खर्च मेरे ऊपर और इस बच्चे के ऊपर हो गया है, ये खर्च मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप रख लीजिए। ये बड़े जतन करके मैंने मजदूरी करके मैंने ये कमाया है, मैं आपने जो खर्च मुझ पर इस बच्चे पर किया है वो मैं आपको लौटा रही हूँ। अहमद इब्न महदी फरमाते, मेरी बहन जो कुछ भी मैंने किया वो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किया है, अल्लाह को खुश करने के लिए किया है, तुम्हारी बदनामी से तुम्हें बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी मुसलमान का अपने भाई का ऐब छिपाएगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब को छिपाएगा। मैंने इसलिए तुम्हारे ऐब को छिपाया है, रहा तुम्हारे ऊपर खर्चा करना और इस बच्चे पर खर्चा करना, तो ये मेरी तरफ से सिला रहमी में शुमार होगा, ये मेरी तरफ से एक इम्दाद है, ये मेरी तरफ से ताउन है, जिसका बदला मुझे तुमसे नहीं चाहिए। जाओ तुम अपना घर बसाओ, जाओ बच्चा भी पैदा हो गया है, कोई अच्छा सा लड़का देख कर तुम उसके साथ निकाह कर लो, और पूरी जवानी अभी तुम्हारी पड़ी है, तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजारो, और तुमने जो गुनाह किया है इससे पहले जिना का, अपने रूठे गुलाम को बनाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हें माफ कर देगा। मेरे भाइयों, ऐसा एक दूसरे के ऐब को छिपाया जाता था, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डाला जाता था। एक दूसरी उस औरत को जो जिनाकार थी, जिसने जिना किया था और जिसके पेट का बच्चा उसके पेट में था, हज़रत अहमद इब्न महदी ने उस औरत को अपने घर में अपनी बीवी बनाकर रख लिया, लोगों को जाहिर किया मेरी बीवी है, हालांकि हकीकत में वो उनकी बीवी नहीं थी। मेरे भाइयों, इस तरीके से ऐब पर पर्दा डाला जाता था। क्या समाज और सोसाइटी में आज है? हम तो एक दूसरे की ग़ीबतें कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे के पीठ के पीछे उसको नंगा कर रहे हैं। हमारी बहनों की शादियों की बात जब चलती है और मशवरा जब मांगा जाता है, तो हम उस लड़की के अंदर 50 बुराइयां गिना कर उसके रिश्ते को खत्म करवा देते हैं। ये सारी बुराइयां, सारे ऐब, सारी बुराइयां आज हमारे मुआशरे के अंदर पनप रही हैं, हमारे समाज के अंदर पनप रही है। आइए जरा उस वाक़े पर नजर डालिए कि हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, एक मसला पूछने आया हूँ। कहा क्या है मसला? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी जब 5 साल की थी उस वक्त मेरे साथ वो इस्लाम लाई थी। मेरी बेटी जब 5 साल की थी उस वक्त वो मेरे साथ इस्लाम लाई थी। आज मेरी बेटी की उम्र 22 साल की हो चुकी है। हजरत उमर ने कहा अभी तक उसकी शादी नहीं की। कहा सुनिए अमीरुल मोमिनीन, शादी के लिए रिश्ता आया हुआ है, मुझे जो पूछना है वो आप बताइए। कहा क्या? कहा मेरी बेटी जब 5 साल की थी, जब मैं इस्लाम लाया तो वो भी इस्लाम लाई, लेकिन जब मेरी बेटी 19 साल की, यानी आज से 3 साल पहले जब मेरी बेटी 19 साल की हुई तो मेरी बेटी से जिना का सुदूर हो गया। आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी और एक लड़के के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। उसने एक बार उस लड़के के साथ जिना कर लिया। अमीरुल मोमिनीन, एक दिन मैं घर में गया, मैंने देखा कि मेरी बेटी किचन में घुसी हुई है। मैंने देखा कि किचन में जमीन पर कुछ खून पड़ा हुआ है। मैं दौड़ता हुआ गया तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी किचन में से छुरी निकाल कर अपने पैर पर मार रही थी, अपने हाथ पर मार रही थी, अपनी रान पर मार रही थी, अपनी गर्दन पे मारने वाली थी। कितने में मैंने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या कर रही हो? उसने कहा तू मुझे छोड़ दो, मुझे इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटी खुदकुशी हराम है, कयामत के दिन तुम अपने रब को क्या मुंह दिखाओगी? बेटी जो खुदकुशी करके मर जाए उसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है। बेटी जो खुदकुशी करके मर जाए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने का हक नहीं है। मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो? तब मेरी बेटी रुकी और कहने लगी अब्बू मैं क्या करूं, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। का क्या गुनाह हो गया है? तब मेरी बेटी ने बताया कि अब्बू मुझसे जिना का सुदूर हो गया।
मैं जिना कर बैठी और आए अब्बू मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मर जाने दो। आए अमीरुल मोमिनीन, जब मेरी बेटी ने कहा कि मुझसे जिना का सुदूर हो गया तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं क्या करता, अपनी बेटी को मार नहीं सकता था, इसलिए कि मरना तो वो पहले ही से चाहती थी, मैं उसको क्या मारता। मैंने कहा बेटी जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करो। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाह को माफ कर सकता है। अच्छा फिर क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा फिर क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन, आज 19 साल से 22 साल हो गए, यानी 3 साल हो गए, मेरी बेटी नमाज पढ़ती, मुसल्ला बिछाती, तौबा करती, गुनाह से तौबा करती, माफी मांगती, रोती, बस खाना खाया मुसल्ले पर, खाना खाया मुसल्ले पर, खाना खाया फिर मुसल्ले पर रोना चालू, दुआ चालू, तौबा और इस्तिगफार चालू। 3 साल से बराबर हो रही है मेरी बेटी अमीरुल मोमिनीन। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी बेटी ने 3 साल से जितने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं से अल्लाह ताला ने मेरी बेटी के गुनाह को माफ जरूर कर दिया। मेरे पास इसलिए आया हूं, अब मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है। एक लड़का मुझे बहुत पसंद है, बहुत दीनदार है, वो भी मेरी बेटी को पसंद करता है, वो भी जब मेरे घर में आता मेरी बेटी को मुसल्ले पर बैठा हुआ देखता है, उसको मेरी बेटी की दीनदारी, उसकी नमाज, उसके रोजे भाग गए। अमीरुल मोमिनीन वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और मैं भी उस दीनदार लड़के से अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। हजरत उमर ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? अमीरुल मोमिनीन प्रॉब्लम यही है, एक बार मेरी बेटी जिना कर बैठी है, मैं उस लड़के को अपनी बेटी का ये ऐब बताऊं या ना बताऊं? जब लड़के से शादी करूं तो ये बताऊं या ना बताऊं कि मेरी बेटी एक बार जिना कर बैठी है? अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने अपने होने वाले दामाद को, उस लड़के को अगर ये बता दिया कि एक बार मेरी बेटी से जिना हो गया, तो वो दीनदार लड़का कहीं ऐसा ना हो दीनदारी की वजह से मेरी बेटी का पैगाम ठुकरा दे, मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दे और सोच ले नहीं मैं तो इसको दीनदार समझकर इसके करीब से शादी करना चाहता था, ये तो जिनाकार निकली। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने उस लड़के को असलियत बता दी तो वो मेरी बेटी का रिश्ता छोड़ सकता है, मेरी बेटी से शादी का इरादा तर्क कर सकता है, और अगर नहीं बताया, चुपके से अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया तो डरता हूं कयामत के दिन कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे, कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे कि आए मेरे बंदे, जब तुझे मालूम था कि तेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ तो तूने अपने दामाद को धोखा क्यों दिया और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उसके साथ क्यों कर दिया? हजरत उमर फारूक, मैं क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? अगर बताता हूं तो रिश्ता छोड़ सकता है, नहीं बताता हूं चुपके से कर देता हूं तो अल्लाह से सवाल जवाब कर सकता अल्लाह मेरा, मैं क्या करूं? हजरत उमर ने फरमाया जा और चुपके से एक पाक दामन और शरीफ औरत की तरह, लड़की की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे, और उस लड़के को अपनी बेटी के बारे में कुछ मत बता कि उससे एक बार ज़िना हुआ है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पाक दामन औरत की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे। जब तू ये कह रहा है कि 3 साल से वो तौबा कर रही है, तो तौबा करने वाले के बारे में कुरान कहता है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, जिसने अपने गुनाह से तौबा की तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो गोया तेरी बेटी से गुनाह हुआ ही नहीं, जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दे और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इस तरीके से ऐब को छिपाने का हुक्म देते थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि किसी की बुराई ऐब हो गया, जुर्म हो गया, जिना जैसा जुर्म, लेकिन उसको भी छुपाने का हुक्म दे रहे हैं कि उसको भी छुपाओ, ऐब पर पर्दा डालो, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह चाहेगा तो अजाब देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसके गुनाह को माफ कर देगा तौबा करने पर। साथियों, आप भी सर्दियों की इस रात में ज्यादा बैठते नहीं हैं, अभी 20, 25, 50 लोगों के दरमियान बोलने में मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने इस्लाह मुआशरे के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं।
آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کریے، اپنے معاشرے کو جاسوسی سے، بدگمانی سے، غیبت و چغلی سے، برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف کیجئے۔ اور لاسٹ میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ اس مدرسے کے لیے آپ سے جو کچھ بھی ہو سکے، ہم ابھی 5 منٹ 10 منٹ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کا تعاون فرمائیں، ہمارے پاس بھی لا کر دیں، اس مدرسے کا تعاون کر کے آپ عند اللہ ماجور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ایک چینل ہے GE میڈیا WB، آپ سبسکرائب کریے، اس پر آپ کو بنگلہ میں، اردو میں، ہماری بھی اور دوسروں کی بھی تقریریں ملیں گی۔ ایک اور چینل ہے راجدھانی چینل، آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس میں بھی آپ کو میری